like from my educational side, I'm a professional electrical engineer. So I did my graduation 3 years back. So I had like this idea to do something with this music society because I was into it and I was taking classes from a very like I'm fortunate to take classes from him. So yeah, so in my journey is like when I was in graduation final year, so I'll be very frank. So I wasn't that much like what you can say um, interested in being in college and वो किताबें पढ़ना और ये सब because when I was doing my diploma, I was very much like familiar to those topics and everything पहले से ही. So like this. Hello. Yes, sir. We Yeah. can. So about my life. So I from like after the educational side and everything. So I was a very active volunteer for like 6 to 7 years in Art of Living. So that helped me very much. Like from it took me from here to like here, like being in that environment and working for a similar goal with a team, and which brought a very friendly and very understanding environment with like everyone. उससे मतलब समझ आया कि कैसे लोगों से बात की जाएगी या फिर कैसे किया, बिकॉज वी वर ऑल्सो इन कॉलेज, हमें इतना कुछ नहीं था. हमें हमारे पास बस एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर होते थे जो हमें पूरा टाइम गाइड करते रहते थे. So in spite of that, like related to my interest and hobbies and everything, so from very younger age I was very much fantasized and very much attracted to this electronics and जोड़ना तोड़ना कुछ चीज है कुछ उसको तोड़ के कुछ और बना दिया and doing all these DIY stuff and whatnot. So yeah, so like this is how it was somewhere clear that I'm going to do something like that this in future. So when I was in my college final year, so I took uh, what like a non-attending year for like I was in the college, but I was not visiting it like on day-to-day basis. So that was the part. Like then at that time, I wanted to learn like the deepest side of the music because it was already 6 7 years I was into music and listening to very high level musicians like in the genre of jazz and blues, and that was like I am from a very small town, so there were no good teachers, so I somehow found a good teacher in New Delhi. So yeah, then I jumped to New Delhi, and for 1 year I traveled to New Delhi, and ये सब चलता था for classes. So this from here my journey started actually the tone door. For 1 year, what I was doing is um, like how it started when I was into my learning stage. So I didn't had money. I was more of dependent upon my parents और उन्हीं से ही पैसे पूछने कि हाँ पैसे दे दो अभी ये चाहिए like although they are like till now they are very supportive. My sister, my parents are very supportive. So हम जब मैं गिटार बजाता था तो हमारी इंस्ट्रूमेंट केबल्स आती थी एक, तो उसमें क्या होता है कि अम, कुछ मैं छोटे शहर से हूँ तो इतना प्रोफेशनल सामान नहीं मिलता था. सो आई हैव टू बाय देम वेरी रेगुलरली, लाइक 2 साल 2 महीने 3 महीने में हर हर वो हमेशा खरीदना ही पड़ता था, एंड दैट यूज टू कॉस्ट समवेयर अराउंड 400 to 500 bucks. और सो इट वाज लाइक हर 4 5 महीने में घर वालों से पैसे मांगना कि हाँ केबल खराब हो गया से ये सब होके. सो लाइक एट सम पॉइंट दे वर लाइक कि भाई तेरे तो रोज का है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ. सो आई समवेयर आई तब नया नया इंटरनेट आया था, एंड आई वाज लाइक इट वाज अ हॉबी ऑफ माइन दैट आई यूज्ड टू
watch at least 10 to 12 technical videos like that was related to my electrical field and electronics, because it was a very deep interest. So yeah, so somehow I watched a video like how to make a guitar cable. So I ended up watching a video and that struck me, yeah, that's yeah, ये तो काफी आसान है, I can make one. So I went to the market. I had 300-400 rupees in my pocket. So I bought that cable parts and बना दिया वो cable, and that cable lasted almost a year and a half. So I was like pretty happy with it. So मैंने दिखाया वो वाला cable सबको कि so like now they look like this, but at that time it was, they were used like look very shit quality, very cheap, but that was not the aim. So उस टाइम जस्ट मस्ती चल रहा था कि ठीक है देख लेंगे क्या बन रहा है, किसी को उस टाइम नहीं था कि बेचना है, इट वाज नॉट एन आइडिया. सो या तो फिर वहां से चलते चलते लाइक व्हेन आई मेड अ केबल, सो अ फ्रेंड बोरोड फ्रॉम मी. सो उसने बोला यार मुझे भी बना दे. सो आई दैट साइकिल स्टार्टेड समहाउ फ्रॉम देयर ओनली कि हाँ कि केबल अब इसको दे दिया. देन उसने लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक वर्ड ऑफ माउथ. So then after like doing this very casually और मजाक में करते for fun करते करते, so I started to do it professionally because my interest was like very much into doing into DIY stuff. And like rather than learning guitar, I was very much interested into like how guitar actually works, how they are made, why they sound like this. So the structural and engineering thing behind everything what I used. So yeah, मतलब यही सब था. So when I started to traveling to New Delhi, so my teacher, I gifted a cable to my teacher. So he was like very much impressed. And I used to do, at the time I was used to do like repairs also, because मेरे शहर में बस एक गिटार की शॉप थी, but there was no repair thing at all. So I used to do repairs and everything, and like so much. So somehow like I had a good experience doing all these things. And पता नहीं वो कहाँ से knowledge आता था, but yeah, it's somehow my mind worked कि हाँ कि ये चीज ऐसे काम करती है. I knew the physics behind वो पहले से कहीं ना कहीं, like it's sort of a blessing you can say. So yeah, from there then in 2017 I named it up because कि चलो ठीक है कि like people are, क्योंकि वो demand दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा था मेरा कि एक ऑर्डर से 2 से फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए. मतलब कई बार इतना ऑर्डर होता था कि हाँ जेब में पैसा होता था लेने के लिए, बट जिनसे मैं सामान खरीदता था उनके पास सामान नहीं होता था. सो इट वाज समवेयर अ वेरी इनसिक्योर सॉर्ट ऑफ बिजनेस जो मैं कर रहा था. बट देन आई स्टार्टेड डिगिंग अप द होल थिंग. उनको थोड़ा मक्खन लगाना शुरू किया दुकान वाले भैया को कि भैया कहाँ से ला रहे हो सामान, मुझे चाहिए, या मेरा ऐसे लाइन रुका हुआ है. तो वो सब, फिर वो सब करते करते ये सब भी हो गया कि सब सामान मिल गया. सो like till now it's been 3 years, like, and I have sent my goods to like each and every part of the India. Like मुझे याद नहीं मैंने कि कहीं ना भेजा हो. थोड़ा सा बस नॉर्थ इंडिया में है, जैसे चंडीगढ़ और ये जम्मू वगैरह के साइड, यहाँ पे मैंने नहीं भेजा, नहीं तो सब जगह है. बिकॉज लाइक दिस थिंग वाज no one was doing this thing because कि लोगों को इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता. सबसे पहली बात है, लोग इतना सोचते ही नहीं है करने के लिए किसी के लिए. सो माय एम वाज टू कि यार चलो कुछ करते हैं, लेट्स हेल्प दिस म्यूजिशियन सोसाइटी. मेरे जैसे कितने म्यूजिशियंस और होंगे जो ये अपनी केबल प्रॉब्लम को लेके रोते होंगे सारा दिन. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू न्यू दिल्ली, सो देयर वर लाइक I was meeting many musicians. Like I was hanging with my teacher Sonic, so he used to take me like very like he's also at a very higher level, so he also was jamming with many of the uh,
highly educated and highly knowledge musicians. So he helped me a lot to introduce to this that ये भृगु है, he is my student, ये सब करता है. So if you want some good cables or repairs to be done, so he is the right guy. So this is how my journey began. So after that, when I like named my business the Tone Door, so after that I started to analyze what more things I need to include into my business. So finding all the stuff, like, so then I sat down and I analyzed the market. I used the social media power कि एक्सप्लोर करने के लिए कि लोगों को, म्यूजिशियंस को क्या चाहिए. सो केबल था, देन देर आर मैनी मोर थिंग्स लाइक कॉल्ड पेडल बोर्ड. आप लोग इतना म्यूजिशियन उसमें सर्कल में, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सो वो था, और बैग्स थे और ये थे. सो माई एम वॉज टू मेक अ थिंग एंड टू टेक इट टू अ सर्टेन लेवल दैट कि लोगों को रियलाइज हो, या दैट थिंग्स कैन बी डन इन इंडिया ऑल्सो. क्योंकि म्यूजिशियंस का ना बहुत ज़्यादा ये रहता है कि यार यूएस से मंगा लो, ये लग मंगा लो, वो मंगा लो, तो वहाँ से मिल जाएगा. बिकॉज इंडिया में भी थोड़ा मार्केट ऐसा है कि शॉप्स भी सामान नहीं रखती, एंड if they have, they won't let you check it, or they won't let you touch it. So that was a bigger problem. So I started to analyze the market, और ये सब कि लोग फेसबुक पे क्या क्या डालते हैं एंड इंस्टाग्राम पे क्या क्या डालते हैं, एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. So from there, like when I started to sell cables, pedal board, then people obviously ask for like, do you have this, do you have that? So gathering that data, like how many people ask me for this thing, so I decided how to bringing in the stuff. Like then after some time, people started asking about bags, cases, traveling cases for their instruments, and ये सब चीजें. So I brought in the bags line also. They are called Gearbox, and the pedal board series are called Pedal Rush. So all these things are like, I've I've given them name like a very flashy and very attractive name, so people can like, wanted something them to like latch on कि हाँ उनको देखना था कि क्या चीज है. So yeah, so at that time, so I was new on Facebook. I was not that much into कि हाँ memes देख लिए, मस्ती वाले वीडियो देख ली, तो इतना ही था. But I was like actually using the social media for the real thing. Now I do all sort of masti because it this Facebook and Insta thing is sort of a dukaan for me and a platform to work for. So हाँ वो memes की आदत लग गई है मुझे भी. तो so yeah, so after that, then when I started to analyze these things, what are the needs, so then I started to research about the products, ki what quality products are actually available in the market pehle se, and what I need them to replace, like मेरे को कैसा सामान लाना है, so I can replace them, because I was about to compete the higher level markets like from US and from Europe and many other brands. So जैसे यूएस के कुछ ब्रांड्स हैं, डी या डेरियो, उनके केबल्स आते हैं, दोज आर लाइक वेरी फेमस, बट दे आर बिल्ड at a for a certain lifespan. So if you are buying a 1500 rupee cable, so they are made in such a way that they have to last only for a year or so. If they last 6-7 years, so no one will be buying their cables that much frequently, so they won't be able to generate a revenue out of it. So but my aim was a bit different, like somewhere competing with them, but with the market wise, but not as a quality product wise. So I almost like from like since 2016 I'm doing this, and it's 2020, so I have like ended up my cable thing research, because अभी मुझे ये वाला केबल बनाने में, मतलब फाइनल करने में मुझे 4 साल लग गया to give a product to musician
इतना कि ऐसा हाई ग्रेड का मुझे केबल बनाना है और इतना हाई क्वालिटी मेरे को प्रोडक्ट बनाना है कि कोई टक्कर ही ना हो इसका. सो मुझे आज के डेट में 4 साल हो गए इसको करते हुए. आफ्टर दैट, yeah, my concern, like I'm very much close to towards nature, and I stay happy and very much close to animals. I'm a dog obsessed person. So कुत्ते बहुत पसंद है मुझे. So my aim was to make such product that even if in the production or in the manufacturing field, if I'm making someone something or giving it to someone, it should not harm the, what you can say, the environmental thing, and it should be like environmentally thing friendly thing and eco-friendly thing. So basically that was the thing, क्योंकि obviously जब आप कुछ चीज बनाओगे, कुछ चीज प्रोड्यूस करोगे, so there will be a by product of it. So कई चीजें होती हैं. So till from the beginning till now, it's a system that when we produce or when we manufacturing certain things, so we have a 3 box thing जिसमें मेटल का सामान जाता है, जिसमें प्लास्टिक का सामान जाता है, और कुछ सामान है जिसमें पेपर वेपर जाता है. तो मेरे उसका भी एंड यही रिसाइकलिंग सिस्टम मुझे एक सेट करना था, दैट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी जहाँ पे कि वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल थिंग एंड वी आर लाइक जस्ट नेग्लेक्टिंग कि ठीक है जो भी हो रहा है नेचर वाइज, कि ठीक है कुछ मतलब खराब हो रहा है नेचर में, तो इट इट डजंट मैटर. तो मेरा नहीं था. सो व्हेन आई वाज अबाउट टू make my cables more attractive and fancier, so I wanted some value to be added to it. So instead of like giving them a plastic packaging and everything, so I chose to like give them in a premium cotton pouches like this. So it's a this one is a old logo of mine, this one is a new one now. So yeah, this one was an old one. So it's a 10 OZ fabric uh, what I chose, and this is made by a guy who works for Fab India. So it's not a desi thing. So yeah, so what you can do is like you can keep your cables, or so even though after using the cable, if it goes after 6 to 7 years, because the life we claim is 6 to 7 years, and this can last almost maybe 10 years or so, I'm not sure. So people are very much uh, what you can say, like attracted to these things because they want to keep something very much special with them, that उन्होंने shopping किया है. So I just wanted to give them something extra कि हाँ उनको लगे, and I also wanted to give them something so they can remember, क्योंकि ये goodies मुझे तो बहुत ज़्यादा attract करती हैं. If someone is like if the thing looks okay, but उसके साथ जो आने वाली goodies वाली होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, that attracts me a lot. So for sure, like I won't mind spending अगर किसी ने ऐसा दिमाग लड़ाया है इस पे. सो या एक तो एम ये था कि इको फ्रेंडली रखना है. और या एक फिर उसके बाद था मेरा, आई वांटेड माय प्रोडक्ट्स टू लुक वेरी नाइस एंड गुड लुकिंग एंड फील वाइज very good. So for that, like after some time, these cables are going to hit the market also. These will be available in every Jampad in New Delhi and some stores in New Delhi and across the India. So I somehow wanted कि कई बार जैसे shopkeepers जो होते हैं, they won't let you test it or let you touch it, or because it's been to my experience कि कुछ शॉप वाले हैं जो if you are very regular to them, they won't be a first to you. Otherwise, like almost here and there वो आपको बोलेंगे सर नहीं हाथ मत लगाओ आप प्लीज, आपको लेना है तो बात करो. So I especially to for the retail store, I have designed such a packing that if someone wants to touch or feel the cable, so
he or she can like easily access the cable and touch and feel it without ruining the packaging at all. So that was a big concern. So that also went very well. And the cables are also like, yeah, the product I want to, the names I wanted to be like a bit very attractive and a bit flashy, because लोगों को थोड़ी flashy चीजें पसंद आती हैं. So all the things you will see are like very much um, what you can say, comes with an icon. So मेरा कोई भी product अगर आप देखोगे, so there is always an icon included in it. Like अभी मेरा एक पावर सप्लाई जो मैंने डिजाइन किया था, so it hasn't been launched yet, but it comes with a like it comes with a like it's look like a like uh, the name of the power supply is like very much um, what you can say, वो मतलब उसके इमेज में दिखता है वो कि या द थिंग is very much like attractive. And the second thing is like जो हमारा जो नया सीरीज का pedal board आ रहा है, so it's called the pedals tank. So it's built in such a way that the icon of the pedal board looks like a tank. So it's sort of a, what you can say, it's very like the product is very much close to the name and the symbol of the uh, product. So yeah, this was the thing. And yeah, and like one more thing was like uh, my business grew like very rapidly because of the help of the musician I met personally, and I started hanging with them and सबसे बात करके और ये सब करके, so like it was very fun, it's still very fun. So because what I observed is कि जो इंडिया के म्यूजिशियन हैं या फिर किसी भी इंडिया के बिजनेस को लेके चलो, सो इट इट हैज अ वेरी laid back kind of customer support, if you can say, कि अगर आफ्टर सेल सर्विसेज हैं तो वो इतना अच्छा नहीं है. सो दे आर ओनली फोर्स टू लाइक से सेल द प्रोडक्ट, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, कि हाँ किससे बात करनी है कि मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया. So my kind of customer support and communication is like कि जैसे बोलते ही हैं कि हाँ ग्राहक भगवान का रूप होता है, हाँ वो भी ठीक है, बट आई एम not being very much down to a customer, like I'm taking them as a very like a very close friend of mine कि ठीक है आ जाओ भाई कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, let's solve it. हाँ you try my products, if अगर आपको प्रॉब्लम आता है कोई बात नहीं, we'll handle it. मतलब I have made a such a friendly and very easy environment for like all the musicians around me. So they, that's the one thing कि वो एकदम से trust कर लेते हैं, and it actually works for me. And this is like what I learned actually from the art of living, क्योंकि uh, before coming into art of living I was like very shy and very लो की पर्सन, और ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी, ठीक है मतलब से मतलब रखना है. सो बीइंग इन आर्ट ऑफ लिविंग इट टॉट अस लाइक, मेरी तो एक तरह से एमबी हो गई, क्योंकि 6-7 साल वहां पे रह के पता नहीं कितने 3-4 हज़ार लोगों को तो कोर्सेज करवा दिए होंगे हमारी टीम ने मिलके. सो ऑल द यूथ एंड ऑल द और हर तरह की प्रॉब्लम्स देख ली, हर तरह के सॉल्यूशंस भी मिल गए. सो इट वाज लाइक अ, वो 6-7 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम ही था. सो आज की डेट में जैसे कई लोगों को होता है कि मेरे कॉलेज के क्लास में बच्चे थे जिनको इवन तो लड़कियों से बात करने में बड़ी वो होती थी, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था. तो आज की मतलब आज मैं इसीलिए खड़ा हो पा रहा हूँ और लोगों से बात कर पा रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ कि क्योंकि वो एनवायरनमेंट में रह के इतना कुछ सीखने को मिला, लाइक इट वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको भी कभी मौका मिले ऐसे फील्ड में काम करने का, जस्ट टिक इन, काम करो, 6-7 साल लगाओ किसी फील्ड में और लोगों से बात करो, because communication is the only one thing you can uh, like take it forward
और तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब हर जगह काम की ही बात नहीं करोगे आप, यू विल ऑल्सो, आप दूसरे का भी इंटरेस्ट जानोगे, सब कुछ होगा। सो इट एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट। सो मेरा बिजनेस भी ऐसे ही ग्रो हुआ, बिकॉज आई लाइक being into this production, I stay very busy, so I try to do all the things like on my own, because एक बड़ा बड़ा परफेक्शनिस्ट आदमी होने के उससे ना, मतलब यू कहीं ना आपको लोगों के ऊपर कम भरोसा होता है फिर, कि यार ये ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मेरा टाइम वेस्ट कर देगा। सो आई ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स ऑन माई ओन, बट वो नहीं हो पाती। एक सर्टेन स्टेज पे जाके आपको लोगों को काम देना शुरू ही होगा, करना ही पड़ेगा। सो दोज, बट एट दैट पॉइंट यू हैव टू ट्रेन दोज पीपल अकॉर्डिंग टू यू, कि हाँ कैसे काम होगा। सो वन दिस थिंग इज द कम्युनिकेशन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, या फिर कहीं ना कहीं झिझक होती है, या फिर कुछ होता है, सो ट्राई आउट, ढूंढो खुद से, बाहर निकलो घर से। मतलब अभी तो थोड़ी सिचुएशन खराब है, अभी मत निकलो बाहर घर से, बट या फाइंड आउट ग्रुप्स, फाइंड पॉजिटिव ग्रुप्स, कि जहाँ पे अच्छे लोग हैं, जिन लाइट माइंडेड लोग हैं, जिनके पास पहले से ही थोड़ा सा नॉलेज है, एंड आपको पता है कि हाँ दे विल हेल्प यू ग्रो इन लाइफ। मस्ती वस्ती भी करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाँ, सो लाइक हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं है। सो आई एवरी वन ऑफ यू, लाइक आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने थोड़ा लाइक कम्युनिकेशन इन बिजनेस, इन स्टार्टअप्स, एवरीथिंग इज लाइक स्किल के अपार्ट में योर बीइंग एन आर्टिस्ट, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। सो अगर आपने कम्युनिकेशन अपना ठीक कर लिया और वो कर लिया, सो एवरीथिंग इज लाइक यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। सो या यही है। और बाकी सब ये है कि बिकॉज आई स्टे इन टच विद एवरीवन, क्योंकि मैं किसी से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेता, या फिर किसी से मैं हार्ड फीलिंग्स नहीं रखता, या फिर कुछ नहीं रखता। तो मैं आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट कि कभी किसी से कभी नोक झोंक होती है, बिजनेस में बहुत होता है। आपको हर टाइप के कस्टमर्स मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज होगा, ऐसे भी मिलेंगे जिनको कुछ होगा नहीं, बट दे विल प्रिटेंड टू बी वेरी एट अ वेरी हायर लेवल। सो आप ऐसे फील्ड में रहोगे जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और हर तरह के लोग आएंगे। सो आपको आपको हर तरह से मतलब सीखने को मिलेगा वहाँ पे। एंड या आई एम स्टिल फिगरिंग आउट माय मार्केटिंग थिंग, क्योंकि व्हाट आई थिंक कि आई एम वेरी वेरी मच लाइक पुअर इनटू दैट, कि अभी भी चल, लाइक अभी 3 साल हो गए हैं, बट माय बिजनेस स्टिल लाइक लोगों के दिमाग में तो नाम है मेरा, बट ऑन सोशल मीडिया जो लोगों को अपफ्रंट में दिखता है कि हाँ ब्रो इसके पास कितने सारे 3-4 हज़ार फॉलोअर्स हैं, मस्ट बी अ फेमस गाय और मस्ट बी अ फेमस बिजनेस, सो लेट्स आस्क हिम और आस्क हर। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। तो the one thing is like if you start a business, you have to be like very much ready about the social media thing, because I'm not from a business background, और मुझे स्टार्टिंग में किसी से ऐसे गाइडेंस नहीं मिला कि हाउ द डिजिटल मार्केटिंग थिंग विल वर्क ऑन इट। और तो वो आज के डेट में मैं सफ़र करता हूँ, पहले मुझे लगता था कि ठीक है चल जाएगा, बट टू फाइंड न्यू कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर आप ये नहीं करते हो। सो अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो या फिर बिजनेस करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर योर प्रोडक्ट्स आर रेडी, एंड विद द उसका जो ऑनलाइन व्हाट आर गोइंग टू रिप्रेजेंट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ सोशल मीडिया पे ही हो गया है। सो आपको कम पर्सनली कम लोग आके मिलेंगे, बट सोशल मीडिया पे आपको ज्यादा लोग वो करेंगे, एंड वंस यू हैव अ कॉल कॉन्वर्सेशन विद देम, एंड उनको भरोसा हो जाता है। बस आपको ये है कि आपको एक बार ही भरोसा दिलाना है कि हाँ यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प देम। सो दैट विल बी अ टोटली विन फॉर यू गाइस, अगर आप थोड़ा उस पर ध्यान रखते हो। और
या लाइक, और मैं एक भी ये भी रिकमेंड करूंगा, बी अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे लर्नर बनो। मतलब इफ यू थिंक, कई कई जैसे लोगों में मैंने क्या देखा है कि होता क्या है कि इफ यू आर like if you see a person in the same field and you want to start a XYZ business, and एक और बंदा है जो आपके सामने है जिसके पास जिसका पहले से ही XYZ बिजनेस है और वो उस फील्ड में 4-5 साल से काम कर रहा है, बट आपको क्या है, वो थोड़े से शाई हो, फिर आपको लगता है कि यार वो क्या सोचेगा कि मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसा मत सोचो, गो टॉक टू पीपल, आस्क फॉर हेल्प, बिल्कुल बेशर्म होके मदद मांगो लोगों से। मैंने तो बहुत बेशर्म होके मदद मांगी है। सो दिल्ली में एक बहुत फेमस जगह है द पियानो मैन जैज क्लब, उसका उनका ओनर है अर्जुन सागर गुप्ता। उनसे मतलब ही इज अ वेरी लाइक वेरी डियर फ्रेंड एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो लाइक अ बिग ब्रदर। तो उन मुझे कभी हेल्प चाहिए होती है तो आई कॉल हिम। कभी सोचा भी नहीं, एंड ही इज लाइक वेरी नाइस कि हाँ आ जाओ, आई विल हेल्प यू आउट। सो इट्स ऑल इट मैटर्स इज कि आपने क्या पहला स्टेप उठाया है पूछने के लिए किसी से, और टू आस्क फॉर अ हेल्प, और इफ यू आर स्टक इन अ मिडल ऑफ समथिंग, तो क्या आपको दिख रहा है कि आसपास कोई है। सो माय मेन थिंग इज टू कि stay in the same community, which will help you grow and which will give you more knowledge about the same product, or spend more time on internet, like looking for the stuff you are going to produce or you are going to deal in. So यही होता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड गिविंग योर बेस्ट टू द बेस्ट एंड मतलब दिन रात, मतलब मेरा तो यही सीन है कि मैं तो दिन रात उसी के बारे में सोचता था। अगर मुझे कुछ बनाना है, सो इफ इवन इफ आई एम सिटिंग इनटू मेडिटेशन, सो वो कुछ टाइम के मेडिटेशन के बाद इट फेल्ट सो गुड एंड आई वाज हैविंग सो मेनी गुड आइडियाज विद मी। सो वो मुझे कहीं ना कहीं एकदम से एग्जीक्यूट करने ही होते थे। सो आई यूज टू बहुत छोटा सा नोट बना के लिख लिया, तो वो फिर धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते रहो। सो वो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। सो या लाइक मोटा मोटा यही है यार। सो अभी इतना आगे तो नहीं पहुंचा हूं मैं इस बिजनेस को लेके, बट सून माई एम इज टू लाइक मेक इट रीच एट अ सर्टेन लेवल की, क्योंकि मेरे कुछ अब यूएस वगैरह में दोस्त हैं और आई सी देम एंड मुझे वाओ, बड़ा वाओ वाला फीलिंग आता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लाइक दे आर इन द सेम इंडस्ट्री, दे आर मेकिंग लाइक गिटार पिकअप्स और गिटार्स बना रहे हैं वो लोग और ये सब। मेरा तो बहुत दिमाग हिलता है उनको देख के, मतलब आग उठती है अंदर से कि मुझे भी करना है, लाइक ऑल दैट DIY स्टफ। सो या सो यही है। तो लास्ट में बस ये मैं यही बताऊंगा, जैसे द चैलेंजेस आई फेस्ड इन दिस ड्यूरेशन, लाइक 3 साल में। एक तो पहला चैलेंज तो ये था कि मैंने स्टार्टिंग में किसी से गाइडेंस नहीं ली, बिकॉज आई वाज डूइंग फॉर फन, और कोई एज सच मेरा प्लान नहीं था। दिस स्टार्टअप वाज एन एक्सीडेंट, तो नो प्लान्स नो नथिंग। तो वो प्लान ना होने की वजह से आई मिस्ड आउट मेनी थिंग्स जो मुझे आज की डेट में आके कवर करनी पड़ी है। लाइक आई स्टार्टेड माई इंस्टा बिजनेस इंस्टाग्राम, लाइक बहुत लेट स्टार्ट किया मैंने। आई वॉज ऑन फेसबुक, बट वो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। व्हेन आई रियलाइज, जब मैंने इंस्टाग्राम पे गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम देयर, और ये सब चीज़ें हैं। सो बी लाइक मेक अ प्लान, राइट इट डाउन, और वो लिखा होना चाहिए कि आपके क्या क्या है। मेक लाइक टेक अ A4 पेपर एंड उसका एक ही साइड पे लिखो, सिर्फ जो जो आपका एम है, क्योंकि एक पेपर पे आप थोड़ा सा ही लिख सकते हो, एंड दैट विल बी लाइक अप एंड डाउन। जो आपको आपका एम होगा कंप्लीट करने के लिए, डू दैट एंड देन मूव फॉरवर्ड। एंड सेकेंड वाज फाइनेंसेस समहाउ, बिकॉज मैंने तो ये जो बिजनेस शुरू किया था, मेरे पास तो 400-500 रुपए थे जेब में, बट आज की डेट में हाँ मतलब ठीक है कि जो भी है, आज तो अच्छा लगता है कि इंडिपेंडेंट होके पेरेंट्स पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है देख के कि हाँ कि अपने आप खड़ा हो गया अब तो। क्योंकि उनको पहले आई वाज टिल 10th आई वाज सच अ डम स्टूडेंट
यू वोंट बिलीव मेरी मदर इतना वो करती थी, बट at like there is like always a turning point in one's life. So कभी like पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिव, उनको साथ लेके चलो। कभी ये मत सोचो कि भाई दुश्मन है हमारे। पहले मैं भी जब थोड़ा उस टीन एज में था तो मेरे को भी लगता था कि यार ये तो सारा दिन डांटते हैं, क्या करते हैं, तो कभी मेरी सुनते नहीं, कभी नहीं मानते मेरी, तो किस लिए हैं, क्या हैं। तो बट ऐसा नहीं है, दे आर लाइक स्टिल वेरी हेल्पफुल, इवन दो लाइक अभी पेंडेमिक के टाइम पे कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, लाइक आई वाज आउट ऑफ बैलेंस एंड एवरीथिंग। सो हर चीज की प्रॉब्लम हर हो जाती है, सो दे वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। सो कीप ऑलवेज बी लाइक अपने पेरेंट्स के साथ रहो हमेशा। पेरेंट्स विल ऑलवेज हेल्प यू, योर सिबलिंग्स विल ऑलवेज हेल्प यू, एंड हैव फेथ ऑन एवरीवन। मतलब फैमिली में सब पे फेथ रखो, एंड या बी स्मार्ट। किसी और स्मार्ट होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। डोंट लेट एनीवन लाइक लूट यू, क्योंकि लुटेरे भी बहुत हैं, आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, आपको आपसे भी स्मार्ट लोग मिल जाएंगे। तो आपसे जो स्मार्ट लोग हैं उनसे सीखो, और जो आपसे कम लोग हैं उनका मजाक मत उड़ाओ, उनके लिए कंपैशन रखो, उनको उनके लिए हाथ बढ़ाओ कि हाँ इफ यू नीड एनीथिंग विल हेल्प यू आउट। सो ये है, एंड या बस यही है छोटा सा मेरा